have discussed about the heat and measuring of heat, how we feel heat, and how we can identify. Then we have talked about little bit about the thermometer. Now, as we told you that thermometer is a device which is used to measure the temperature. Now, concept of temperature I will take up in briefly. The measure of the heat is called temperature. जो measure होता है heat का, that is known as temperature. And we have seen in an activity that we can feel the less or less temperature and cold temperature. So we can say that the hot water is at a higher temperature and cold water is at a lower temperature. Now, the instrument by which we are measuring the temperature is known as thermometer. We have discussed the thermometers are of two kinds as per their use, clinical and laboratory. Now, as per the matter which is filled in it, it is of two are of two types known as liquid thermometer and dry thermometer. Now, in this type of thermometer, liquid is used. Means within the thermometer, a matter which is filled, that is liquid. It can be alcohol or it can be mercury. Now, in dry thermometer is nothing but they are electronic thermometer, or we can say digital thermometer, in which thermistor is used in place of mercury. Mercury की जगह thermistor use होता है. These thermometer give accurate and quick results. इनसे बहुत जल्दी और एकदम accurate result मिलता है. Then structure of thermometer. When we talk about a structure of thermometer or simple thermometer, the thermometer is made from fine, clear, transparent, colorless glass. I hope you are familiar with these terms. Clear means them clean. Then transparent means we can see through it. Colorless means without any color. और ग्लास का बना होता है. It has a stem and a bulb. इसमें एक लंबा सा स्टेम होता है और एक बल्ब होता है. द स्टेम इज थिक ग्लास ट्यूब. स्टेम क्या होता है? बड़ी मोटी सी ग्लास ट्यूब का बना होता है और सम वॉट ट्रायंगुलर और बाइकॉन्वेक्स इन क्रॉस सेक्शन. या तो ट्रायंगुलर होता है या बाइकॉन्वेक्स होता है. बाइकॉन्वेक्स मीन्स दोनों तरफ से उभरा हुआ. विथ हैव अ फाइन बोर रनिंग अलोंग इट्स फुल लेंथ. मीन्स उसकी पूरी लेंथ में एक पतली सी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर जिसको कैपिलरी कहते हैं वो रहती है. वन एंड ऑफ द कैपिलरी एंड्स इन अ थिन वॉल्ड ग्लास बल्ब. इसका एक एंड जो कैपिलरी का है वो एक ग्लास बल्ब में एंड होता है. नाउ द बल्ब इज फिल्ड विथ mercury or alcohol. These two liquids are used in filling. The other end of its closed after removing all the air. अब जो उसका दूसरा एंड होता है स्टेम का, उसमें से सारी एयर को निकालकर उसको क्लोज कर दिया जाता है. द स्टेम ऑफ द थर्मामीटर में ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विथ अ हुक फॉर हैंगिंग इट इनटू अ बैग. और इसके स्टेम में कभी कभी एक हुक लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिससे हम इसको लटका सकते हैं. देयर आर मार्किंग्स ऑन द बॉडी ऑफ टेम्परेचर विच हेल्प टू रीडिंग द टेम्परेचर. और बाकी भी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे ग्रेजुएशंस होते हैं या मार्किंग्स होते हैं जिससे कि हम टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं. नाउ temperature scale lower and upper points. A thermometer has a scale marked on its stem to read the temperature. Thermometer में scale mark होता है. The markings on the stem of a thermometer are from 0 to 100. A 0 is towards the bulb of the thermometer and mark 100 will be towards the end of the thermometer. Thus all the markings from 0 to 100 or starting from -30 to 110, they are at an equal distance. The length of thermometer tube from 0 to 100 is graduated in 100 equal parts. Means जो भी length है, जितने भी उसके मार्किंग है वो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब एक इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज दैट? डिग्री इज यूनिट मेजर ऑफ टेम्परेचर. जब हम किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें एक छोटा सा जीरो ऊपर लगाकर और सी लिखते हैं, उसको कहते हैं डिग्री. यू कैन सी इट इन द बुक ऑल्सो. डिग्री इज डिनोटेड बाय सिंबल. ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखा हुआ है ऊपर टॉप पर, दैट इज नोन एज डिग्री. मतलब कोई भी नंबर लिख रहे हैं, लेकिन 38 लिखा तो 38 के ऊपर छोटा सा जीरो बन जाएगा, तो दैट सिंबल इज ऑफ डिग्री.
When thermometer is placed in crushed ice, अगर हम थर्मामीटर को crushed ice में रखते हैं, mercury in the capillary comes to stand at 0. अब जैसे कि हमको पता है कि आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टार्ट होती है मेल्टिंग, तो जब हम उसको उसमें रखते हैं तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दैट विल दिस पॉइंट डिनोट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. ये जो 0 डिग्री है ये या तो मेल्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है या फ्रीजिंग पॉइंट बताता है. दिस इज द कूलेस्ट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. ये सबसे ठंडा पॉइंट होता है. दिस टर्म्ड एज 0 डिग्री टेम्परेचर. अगर हम इसको उसका उल्टा करते हैं, हम उसको बॉइलिंग वाटर में रख देते हैं, तब हमारा थर्मामीटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताता है. दैट शोज दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ द टू मोस्ट कॉमनली यूज स्केल्स ऑन थर्मामीटर. अब बात होती है कि किस स्केल में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं. कॉमनली यूज थर्मामीटर्स आर ऑफ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. सबसे ज्यादा यूज होता है सेल्सियस. द मोस्ट वाइडली यूज स्केल टू मेजर टेम्परेचर इन द सेल्सियस स्केल. इट इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एंड्रियस सेल्सियस फ्रॉम ग्रीस. इसका जो है नाम एंड्रियस साइंटिस्ट के नाम से लिया गया था. ही सजेस्टेड दैट द लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ थर्मामीटर between the freezing point of water into ice and the boiling point of water be graduated into 100 equal parts. उसने कहा कि जो थर्मामीटर होता है कि उसके बीच में 100 पार्ट्स होने चाहिए और 0 से स्टार्ट होना चाहिए और 100 पे खत्म होना चाहिए. The degree, the unit measure of temperature is denoted that we have already discussed. Now, hence the thermometer with 100 graduations between these two points is known as Celsius thermometer. ऐसा थर्मामीटर जिसमें 100 ग्रेजुएशंस होते हैं, 0 से लेके स्टार्ट करके 100 तक, उसको कहते हैं सेल्सियस थर्मामीटर. जिसमें इसका लोएस्ट पॉइंट क्या बताता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और हाईएस्ट पॉइंट बताता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. At times, the term centigrade is used instead of Celsius and is also denoted by symbol 0 डिग्री सी. ऐसे लिखा जाता है, डिग्री सी करके इसको लिखा जाता है. इन टर्म सेंटीग्रेड, centi means 1 upon 100 and grade means stands for the unit of temperature. So the graduation or degree, hence each division of the Celsius scale represent 1 degree centigrade. हर डिवीजन जो सेल्सियस स्केल का है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन्स कांस्टेंट एट 0 डिग्री. जब मेल्ट होती है आइस तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. सेम इज द केस टेम्परेचर ऑफ स्टीम ओवर बॉइलिंग वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री. अब दूसरा स्केल होता है फ़ारेनहाइट. इसको भी इसके साइंटिस्ट के नाम से, इसको F से डिनोट किया जाता है और डिग्री का सिंबल उसी तरह से लगाया जाता है. द फ़ारेनहाइट स्केल वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट गैब्रियल फ़ारेनहाइट. ही सजेस्टेड दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बी मार्क्ड एज 30 डिग्री F. उसने कहा कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री F में से डिनोट करना चाहिए. And the boiling point of water as 212 degree F. Like the Celsius scale, the distance between these two points is divided and graduated into 180 equal parts. अब क्या होता है? सेल्सियस स्केल की तरह इनके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं उनको 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. अब रिलेशन बिटवीन, अब ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं एंड आई हैव गिवन इन वर्कशीट ऑल्सो. The intervals of 100 in degree Celsius scale is equal to an interval of 180 in degree Fahrenheit. 180 के बराबर होता है. The ratio of degree centigrade to degree Fahrenheit is 100 is to 180. Means 5 is to 9 का रेशियो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में. उससे हमने ये फॉर्मूला निकाला कि अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो वी विल राइट F is equal to 5 upon 9. F is equal to C into 9 upon 5. Listen once again. F is equal to C into 9 upon 5 plus 32. Means C की जो वैल्यू है जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो हम लिख देंगे, उसको 9 upon 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें हम 32 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ जाएगा. इसी तरह से अगर हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट को तो हमारा फॉर्मूला बनता है 5 upon 9 विद इन द ब्रैकेट F minus 32. हमने 5 upon 9 लिखा और उसमें F की वैल्यू जो हमें जितना भी फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है वो लिखा, उसको 32 से उससे 30 माइनस कर दिया
और फिर मल्टीप्लाई किया 5/9 से तो हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यूजिंग द रिलेशन वी कैन कन्वर्ट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड। अब देखिए ये C इज इक्वल टू 5/9, अब 200 डिग्री फ़ारेनहाइट 12 को कन्वर्ट करना है, तो विद इन द ब्रैकेट वी विल राइट 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 100। अब कैसे होता है कि व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट तो इट विल कम 5/9 इंटू 180, तो when 9 से हम कैंसिल करेंगे तो we will get the 100 degree temperature in centigrade. Thus 0 degree centigrade is the same as 30 degree. मतलब 0 degree centigrade is equal to the 32 degree Fahrenheit and 100 degree is the same as 212 degree Fahrenheit. It would be of interest to learn that if a liquid on cooling at a temperature of minus 40 degree on Celsius scale, it will be the same, that is minus 40 degree Fahrenheit on Fahrenheit scale. Then different types of thermometer. Now as I have discussed about liquid and dry thermometer, then we will come to the among the liquid thermometers there are two kinds of thermometer. One is mercury thermometer, and mercury thermometer, it is of two types, clinical or laboratory. Clinical thermometer is used to measure the temperature of a body person. The liquid used inside the clinical thermometer is mercury. इसके अंदर mercury होता है। अब उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर होता है, बस स्केल जो होते हैं वो बदल जाते हैं। लाइक फ़ारेनहाइट में 35 से 42 डिग्री तक मार्क रहेगा, और जब हम सेंटीग्रेड में देखते हैं तो इट विल बी 94 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.4 होता है, तो नॉर्मल से स्टार्ट होगा, नॉर्मल तो हम देख सकें, और हाईएस्ट 108 डिग्री तक ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे वी कांट एग्जिस्ट। सो इसमें एक खास बात होती है, देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन इन द कैपिलरी ट्यूब। इस तरह का जो मरकरी कॉलम होता है उसमें एक किंक जैसा स्ट्रक्चर फोल्डेड होता है। ये किंक क्या करता है कि जब हमने उसका टेम्परेचर मेजर किया तो तुरंत जो है मरकरी कॉलम फॉल नहीं करता। अगर तुरंत फॉल करेगा तो हम अपना मेजर टेम्परेचर देख नहीं सकते, इसलिए इसमें किंक होता है, और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है क्लिनिकल थर्मामीटर की। So this is about the, I am repeating this term again because this is important. Mostly it is asked why the kink is provided in the clinical thermometer. So listen it carefully. There is a constriction in the capillary towards the bulb. Bulb की तरफ एक constriction होता है that prevents the flow of a mercury back. जो अगर मरकरी का कॉलम रेज किया with the higher temperature, it would not come back immediately in the bulb. आफ्टर इट इज रिमूव फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, बॉडी से निकालने के बाद तुरंत नहीं नीचे आएगा क्योंकि उसमें किंक है। दिस हेल्प्स इन गेटिंग द एक्चुअल टेम्परेचर, जिससे कि मदद मिलती है एक्चुअल टेम्परेचर को नोटिस करने के लिए। अब आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज shown in the diagram. The thermometer that we use in laboratory are called laboratory thermometer. इसको हम कहीं भी लगाकर इससे हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। To measure temperature below 0 degree or above 100 degree, we use laboratory thermometer. अगर हमें 0 से नीचे भी टेम्परेचर मेजर करना है, लाइक -10 तक, और above 100 लाइक अप टू 110, तो हम इसको यूज करते हैं। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई? -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। देन एक आता है अल्कोहल थर्मामीटर और रूम थर्मामीटर। इसमें अल्कोहल फिल होता है, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। Instead of mercury, red colored alcohol is used in alcohol thermometer and to measure the temperature of room or the temperature of environment around us. इसका फायदा ये है कि ये बहुत कोल्डर रीजन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर नोटिंग द टेम्परेचर। बीइंग चीपर एंड नॉन पॉइजनस, अब अल्कोहल ना तो नॉन पॉइजनस होता है और चीप भी होता है, इसलिए ये सेफ होता है एज कंपेयर टू द मरकरी थर्मामीटर। The disadvantage associated with the alcohol is that it can only be used for measuring limited range of temperature. इसका disadvantage एक ही है कि ये हम केवल limited range of temperature के लिए यूज करते हैं। It cannot be measured temperature higher than 78 degree centigrade. इससे हम 78 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। अब कुछ एडवांटेजेस होते हैं यूजिंग मरकरी थर्मामीटर। दे आर, मरकरी इज lustrous, so it is clearly visible inside. It takes heat quickly. It shows nearly uniform rate of expansion. It freezes
freezing point is much below 0 degree centigrade. Its boiling point is 357 degree centigrade. So these are the advantages of the